श्री मुक्तसर साहिब में नदी के पानी में आए कटाव की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लेकिन लोगों ने हौसला दिखाते हुए प्रशासन के पहुंचने से पहले ही एक दूसरे के घरों से खाली थैले मांगे और उनमें मिट्टी भरकर पानी रोक दिया। पंजाब के कई जिलों से आए सेवकों ने दूसरी बांध को भरने के लिए एक मार्च निकाला। इस दौरान सेवकों के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और अजनाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी दूसरी बांध को हाथ से भरने की सेवा की। लगातार ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਨੇਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾੜ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਭ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕੁੰਭ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੁੰਭ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੂੰ। एमएलए मंत्री सब चीजें पड़े रही, सेवा करनी बहुत जरूरी है अपने समाज की। फिरोजपुर में भी बाढ़ का कहर बरपा है, जिसके बाद कई फिल्मी सितारों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। पंजाबी फिल्मों के अभिनेता और लेखक प्रिंस कमलजीत सिंह, गुरचेत चित्रकार और बलकार अनखीला और इंद्रजीत सिंह निक्कू बाढ़ पीड़ितों के पास राहत सामग्री लेकर पहुंचे। हाँ जी प्रिंस भाजी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਪਾਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 ਫੁੱਟ ਹਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਰੱਸੇ ਰੁੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਈ ਵੀ ਨਾ ਸੀਗੇ, ਅਰਸ਼ ਬਾਈ ਵੀ ਸੀ ਆ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਲੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਥੂਗਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਹਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਲਕ ने ड्यूटी लाई जरूर। पंजाब की बाढ़ पीड़ितों के लिए देश भर से लोग मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्मी सितारों के साथ कई आध्यात्मिक गुरु भी मदद के लिए आगे आए हैं। हार्दिक दुख है कि पंजाब में जो भी पाना वरते हो, पर कुदरत दे अगे किसी दा जोर नहीं। असी अरदास कर रहे हैं कि मालिक मेहर करे। पंजाब पर विनाशकारी बाढ़ की ऐसी मार पड़ी है कि उसे फिर से उठकर खड़ा होने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि बाढ़ बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है जिसका अभी अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। पंजाब की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे पंजाब के लिए जल्द दौड़ना मुमकिन हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पंजाब में लोग अभी भी राहत की सांस नहीं ले पा रहे हैं और वजह है बाढ़। पंजाब के कई इलाकों के हाल तो ऐसे हैं कि पानी घरों तक घुस आया है, जैसे लोगों को छत पर रहने की नौबत आ गई है। हर तरफ पानी भरा है और लोग अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। घर और खेत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। इंडिया न्यूज़ ऑन ग्राउंड है और इंडिया न्यूज़ पंजाब में है, और हम आपको सारे जो ग्राउंड की तस्वीरें है वो हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये डैम है। यहाँ के जो सारे गेट्स है वो सारे गेट्स
खोल दिए गए हैं, जिसके वजह से जो पानी है लोगों के घर तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का भी नुकसान हुआ है। उनके जो गेहूँ है, उनके जो खेते हैं, उनके जो धान है, उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। घर तक पानी चला गया है। इसके वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लोग सरकार से भी एक अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल पाए उनको, क्योंकि मदद के हिसाब से भी उनको ज़्यादा खास कुछ मदद मिल नहीं पा रहा है। जो भी मदद मिल रहा है वो या तो फिर जो सेवा है गुरुद्वारा से है, जो लोकल्स है वहाँ से मिल पा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी है, उनसे हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे। पहले तो आपका नाम बता दो। बलजिंदर सिंह। बलजिंदर, ये पहले तो हम ये एक थोड़ा बता दो, ये हम कहाँ खड़े हैं और क्या स्थिति है यहाँ? सर हरिके हैड के ऊपर पत्तन के उत्ते खड़े हैं। लेवल की बात किया जाए तो लेवल का कम से कम 600 के आसपास हो सकता है पानी, उनसे नीचे नहीं हो सकता। ये हरिके हैड के ऊपर खड़े हैं तो ये डैम बना हुआ है, ये मतलब बराज है, और ये इसके सारे गेट्स खुले हुए हैं। हाँ सर, 34 गेट है डैम के, और 34 के 34 खुल चुके हैं। और आप लोगों को पता ही है ज़मीन लोगों की कितनी बर्बाद हो चुकी है। उनका वजह कारण लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। किसी के घर रुड़ गया है, किसी के भैंसें रुड़ गई है, किसी के ट्रैक्टर, सामान कीमती जो सारा बर्बाद हो चुका है। आपके घर तक भी पानी वानी गया होगा, आपके भी जो खेते हैं, जो आपके धान है, वो उस पर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा सर नुकसान हो चुका है। धान तो सब नष्ट हो चुका है। और जो घर की बात किया जाए तो घर पे भी पानी बहुत आ चुका है। मोटे कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 15-20 के आसपास नुकसान हो चुका है। और सिचुएशन या स्थिति बेहतर होने की क्या गुंजाइश है? कब तक बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हो? सर उम्मीद तो यही करता हूँ, भगवान की आगे हाथ जोड़ते हैं कि बारिश कम हो जाए। बारिश की वजह कारण बहुत पानी पीछे से आ रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। पानी जब बारिश हट जाएगी तो फिर नुकसान नहीं होगा। जब बारिश पैंदी रहेगी उसकी वजह कारण पानी ज़्यादा आंदा रहेगा, उदा करके फिर नुकसान हो से क्या उम्मीद है? सरकार से यही उम्मीद करता है जिनका घर फूट गया है उनसे बनाना चाहिए, उन लोगों को बना के देना चाहिए। और जिनकी ज़मीनें भी ख़राब हो चुकी है उनको बना के देना चाहिए। ये पानी जो गेट्स खुले हैं बराज के, ये गेट खुलने के कारण पानी अंदर लोगों के घर तक गई है, और उसके वजह से 10-10, 15-15 फुट तक भी पानी गई है। जी सर, ये गेट खुलने की वजह कारण सभी के घरों पे पानी आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर सचदेव सिंह है, मैं फरीदकोट से आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आप एक नेशनल चैनल है जो इंडिया न्यूज़ से आप ग्राउंड जीरो पे आए हैं। तो मेरी बेनती यही है कि क्योंकि नुकसान तो जो होना था हो चुका, अभी ज़रूरत है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं नेशनल हमारी जो सेंटर सरकार है उसको बेनती करूंगा कि आप भी पंजाब के साथ खड़ें, क्योंकि पंजाब जब भी कहीं भी कोई भी ज़रूरत पड़ी है तो पंजाब पहुंचा है। वो तो कोई भी मुल्क हो, कोई भी स्टेट हो। तो अभी हम हरेक के हेड पे खड़े हैं। आगे जो पानी छोड़ा जा रहा है ये पाकिस्तान का एरिया है आगे, ठीक है। फिरोजपुर फाजिलका से आगे दरिया पाकिस्तान में चला जाता है। इस दरिया में जो आगे दरिया है इसके अंदर बहुत सी ज़मीनें हैं किसानों की, वो बिल्कुल तबाह हैं। और बहुत से ऐसे बांध हैं, जैसे हम 3-4 दिन से हबीब का और अली का बंद पछाड़ियाँ जो बिल्कुल बॉर्डर की 0 लाइन पे है वो बिल्कुल टूट चुका है। लोगों ने उसको अपने खुद के प्रयासों से बांध लिया, फिर भी जो जिधर भी टूटा है वो सारी जड़ी धान की फसल है ख़त्म हो गई है। और अभी आगे दिक्कत ये आने वाली है कि गेहूं की फसल के लिए भी लगता नहीं है कि गेहूं की फसल भी यहाँ पर बोई जा सकेगी, क्योंकि ये पानी अभी 1 महीना नहीं उतरेगा। मतलब स्थिति नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा? 1 महीना आराम से लगेगा, क्योंकि पानी रुका रहेगा, ठीक है। अभी भी पीछे बारिश आज फिर हो रही है, 2 दिन का अलर्ट फिर चल रहा है पंजाब में कि बारिश आज भी है, कल भी है, 2 दिन और है। तो इससे पानी और बढ़ सकता है। सरकार से कोई मदद मिली? सर सरकार से कोई खास मदद नहीं है, लोग खुद ही सारी मदद, वो चाहे पंजाब सरकार है चाहे वो सेंटर सरकार है, कोई खास राहत नहीं है, ठीक है। लोग खुद ही अपने घरों से चारा, अचार, खाना वगैरह सेवा से जो मदद, सेवा से हम 3-4 दिन से बांध पे हैं। आज हम यहाँ स्थिति देखने आए थे पानी कितना कम हुआ है। राहत की खबर यह है कि पानी अभी कम है।
आज काफ़ी पानी कम हो गया है पहले से, क्योंकि पहले तो यहाँ पर पानी काफ़ी ऊपर आ गया था, वो नज़र आ रहा है आपको, वहाँ तक पानी था। ठीक है, आज आप देख रहे हैं कि ये गेट भी थोड़े से बंद कर दिए गए हैं। उधर दूसरी जो राजस्थान कैनल है और इंदिरा गांधी कैनल है उसमें पानी छोड़ दिया गया है, इधर ये वाले गेट खुले हुए हैं कल। ये सारे गेट्स अभी भी खुले हुए। जैसे सर मैं इनके गांव भी गया था, यहाँ उनके गांव तक पानी 15-15 फुट 20-20 फुट पानी। बिल्कुल सर, इधर कम से कम 200-300 गांव है, ये एक गांव नहीं है, इस दरिया में 300-400 गांव है। इधर आप जब हसैनी वाला बॉर्डर तक जाएंगे, आगे फाजिलका तक जाएंगे, तो बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर कुछ भी नहीं बचा। ऐसे घर भी हैं जिनका नामो निशान मिट गया है, वो उनकी ईंट भी नहीं मिलेगी जब दरिया उतरेगा। और जब दरिया उतरेगा तो इसकी इतनी मिट्टी चढ़ जाएगी किसानों के खेतों में कि उसको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी होगी। सो मैं सरकार से यही बेनती करता हूं कि अगर आप अभी नहीं आ सके कोई बात नहीं, क्योंकि नुकसान की भरपाई तो बाद में ही होनी है। अभी तो आप आइए, लोगों को डीजल दीजिए, लोगों को गेहूं का बीज दीजिए, ठीक है, लोगों की हेल्प करिए, लोगों को घर बना के दीजिए, जिनका जो भी गवाया है, क्योंकि जान तो नहीं आएगी जो मर गए हैं, क्योंकि कल परसों का आंकड़ा पंजाब का 45+ था इस में मरने वालों का, और पशुओं की कोई गिनती नहीं है। ठीक है, बहुत से और पक्षी के भी काफी नुकसान हुए हैं काफी, क्योंकि पंजाब में बहुत सारा जो मतलब लोगों का दारोमदार है वो पशुओं के ऊपर भी है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर दूध बेचकर अपना काम चला रहे हैं। जिनके पास 1-2 किल्ले जमीन है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके पशु भी बह गए हैं। बहुत से पशु आपने पाकिस्तान की वीडियोस देखी होंगी, वहाँ उधर चले गए हैं, बहुत से पशु मारे गए हैं, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। अब सरकार चाहे तो ये नुकसान की भरपाई हो सकती है। जैसे कल परसों ही केंद्रीय मंत्री यहाँ जो खेती बाड़ी मंत्री हैं वो एक राउंड लगा के गए हैं, तो उम्मीद है कि वो अच्छी रिपोर्ट आगे जाकर मोदी साहब को सौंपेंगे, और जो बनती है रिपोर्ट, ठीक है, अगर वो अच्छी रिपोर्ट देंगे तो हो सकता है कि हमें कोई ना कोई राहत मिले। आप बोल रहे हो कम से कम 1 महीना लगेगा ये स्थिति नॉर्मल होने में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, जमीनें बिल्कुल खत्म हो गई हैं, लोगों के घर तक भी घर खत्म हो गए हैं। ठीक है, बहुत से घर ऐसे हैं जो मैंने पहले आपको बताया कि खत्म हो गए हैं, कुछ नहीं बचा। ठीक है, लोगों का एक कमरा नहीं बचा, लोग बाहर टेंट लगाकर बांध पर ऊपर बैठे हुए हैं। अभी काफी सारे जो डैम के गेट्स है वो बंद कर दिए गए हैं, पर इस साइड के जो सारे गेट्स है वो अभी भी खुले हुए हैं, जिसके वजह से जो ये पानी है ये अंदर तक जा रहा है, लोगों के घर तक जा रहा है। लोगों के घर तक 15-15, 20-20 फुट तक का पानी है, जिसके वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। मैं ब्रायन आंटी थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ पंजाब। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश के कई और दूसरे हिस्सों में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई जगह ऐसी हैं जहां पर कई इलाकों में बाढ़ की बदहाली से लोग जूझने को मजबूर हैं। यमुना समेत कई दूसरी नदियां यहां कहर बनकर टूट रही हैं। कई जगह लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। सरकारी एजेंसियां फिलहाल मदद में जुटी हुई हैं। पानी की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देने वाली है। पानी की ये तस्वीरें आपकी आंखों में पानी ला देने वाली है। पानी की ये तस्वीरें किसी का पानी उतार देने वाली है। पानी की ये तस्वीरें शर्म का पानी आंखों पर चढ़ा देने वाली है। यूं तो हिंदुस्तान की कई तस्वीरों ने हमें यह एहसास कराया है कि अपने ही मुल्क में हम किस तरह व्यवस्था, उसमें खामियां और अफसरों की मनमानी और नागरिकों की बदकिस्मती से पराये हो जाते हैं। लेकिन जब तक कुदरत जब इस तरह बेरुखी दिखाती है तो यकीन मानिए कलेजा फट जाता है। भले ये तस्वीरें जान ना लेती हूँ, लेकिन माल तो ले ही जाती हैं और जीने नहीं देती। ये तस्वीर देश की किसी ऐसे कोने की नहीं जहां इंसान ने इस तरह की तरक्की न की हो, कुदरत ही उसे सजा देने पर उतर आया। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां देश की सियासी इबारत लिखी जाती है, जिसका सबूत यह है कि खड़ी खड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन इसी इमारत के पायों से टकराने में जुटी यमुना अब उसी इबारत को धूल पहुंचकर नई इबारत लिखने को बताब है। दिल्ली में उफनाई यमुना अपने कद को घटाने को तैयार नहीं है, लिहाजा कई इलाके जिनमें सिविल लाइंस
वसुदेव घाट समेत कई ठिकाने हैं जहां यमुना की मौजूदगी में लोगों के उसके विराट रूप का एहसास हो रहा है। सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि मथुरा में भी यमुना कॉलोनियों में दाखिल हो चुकी है और ये बताने की कोशिश कर रही है अगर यूं ही ये सिलसिला चलता रहा तो अभी कुछ और भी मकान हैं जो उसकी जद में आएंगे। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के दूसरे कई हिस्से हिमाचल बिहार में भी बाढ़ से हालात खराब है। हालांकि इन इलाकों को मदद मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि पानी के आगे बस सब बेबस है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है, पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यहाँ हम आपको दिल्ली की 6